Hello, beautiful midlife sisters, and welcome back to another meaningful conversation with me, Dr. Sulbha Arya, an oncologist and a hormonal health coach for midlife women, and the founder of Perimenopause and Beyond, a movement where we talk about confidence, identity, health, self worth, and becoming ourselves again in midlife. As women move through midlife, so many changes happen quietly. हमारी bodies change होती हैं, our bodies change, our confidence shifts, our relationship with the mirror changes, and somewhere between these responsibilities and self-doubt, many women stop feeling themselves again. And one thing I hear very commonly from women is nothing looks good on me. I don't know how to dress for my body. I've lost confidence in the way I look and carry myself. But today's conversation is not about fashion. It's about identity. It's about confidence. It's about being present and reconnecting with yourself through the way you show up in the world. And for this very important conversation, I have with us Shalini Gupta. She's a personal stylist and image consultant. She helps women transform the way they look, they feel, and carry themselves through personal styling, confidence building, grooming, and presence. Her work goes far beyond clothes. It's about helping women feel comfortable, elegant, and confident in their own skin again. And today we'll talk about body image challenges in midlife, dressing confidently according to whatever shape your body has, dealing with concerns like heavy arms, belly area, or I have nothing to wear feeling. And most importantly, how to create an effortless, graceful style without losing yourself in the trends. Because the truth is, style is not about hiding your body, it's about honoring yourself at every stage of life. So let's begin this beautiful conversation. Hi, Shalini. Thank you Yeah, so much for joining us today. thank you, Sulba. Thank you so much for giving me this opportunity. And yes, and it's a very big opportunity for me to help women for their perimenopause situation because it is. I hear that this situation is women facing too much problems and some kind of hormonal changes, and because of that, their mental health also getting harmed. So thank you यस, so much for मेंटल this एंड opportunity. फिजिकल। ये टाइम होता है जिसमें हम एक चीज को तो हम लोग जानते हैं कि चलो वेट गेन की बहुत कॉमनली प्रॉब्लम होने लग जाती है Hmm. फीमेल्स को, तो उनको ये लगता है कि मुझे कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं, आई डोंट लुक गुड। तो वो एक डिस्कनेक्शन जो है उसमें हम लोगों को कैसे अपने आप को नेविगेट करना है, फॉर दैट आई वांट योर टिप्स एंड ट्रिक्स दैट टू हेल्प आवर ऑडियंस Yeah, टुडे। definitely. Yeah, sure. तो शालिनी, midlife एक ऐसा phase है जहाँ पे women feel disconnected from their bodies. What are Yes. the most commonly seen in body image struggles that you see with women that you work with? See, Zulba, one of the very biggest struggle which I am seeing in many women, जो मैंने नोटिस किया है, लाइक women in mid age, वो खुद को कंपेयर करती हैं अपने लाइक वेरी यंगर वर्जन के साथ, Hmm. राइट? उनको लगता है कि इस एज में भी मैं वो कैरी कर सकती हूँ जो मैं अपने 20 ईयर में करती थी। एंड इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर करंट बॉडी, लाइक क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो आप अपने 20s में थे वही आप अपने 45 में भी होगी, राइट? सो पहला स्ट्रगल तो ये है कि वो अपनी बॉडी का जो करंट सिचुएशन है ना उसको समझना नहीं चाहती, राइट? सो एज के साथ सब चेंजेस आते हैं अपनी बॉडी में, आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपका लाइफस्टाइल भी चेंज होता है, बट मेंटली उनको लगता है कि नहीं, मैं वही 20s वाली हूँ और वैसे ही ड्रेसिंग करूँगी। और इसी जो उनका थॉट प्रोसेस है ना, इसी की वजह से वो फेस करती है, उनको प्रॉब्लम आती है लाइक अरे मुझ पर तो कुछ सूट ही नहीं करता। Hmm. कैसे सूट करेगा जब आपका लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज हो गया और आप स्टिल वही पहनने का सोच रहे हो, तो कैसे सूट करेगा, है ना? और उनको लगता है कि अब इस एज में आकर ना मेरी बॉडी एक प्रॉब्लम बन गई है कि क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं लगता मेरे ऊपर, राइट? सो वी आर विमेन, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं एंड द नर्चरर टू,
बट अपनी फैमिली में इतने ज़्यादा हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपने आप से ना हमारा डिस्कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। Yes, और yes. दैट इज़ द मेन रीज़न कि विमेन अपने आप को समझना ही नहीं चाहती, राइट? सो दिस इज़ द वेरी मेन इशू जो मिड एज में विमेन फेस करती है इन ड्रेसिंग एंड इन मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो जो हम जो बात करते हैं कॉन्फिडेंस की, हाँ, ये कहाँ से आता है? द वे वी ड्रेस या हाउ वी फील इंटरनली, या फिर ये एक मिक्स है दोनों का? एग्जैक्टली, डेफिनेटली इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। एज वी सी कि इनर कॉन्फिडेंस हमारा इम्पोर्टेंट है, बट वो कैसे आएगा? द वे वी ड्रेस, जैसे हम पहनते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है। हम्म. द वे वी स्पीक टू अदर्स वो भी चेंज होता है। द वे वी रिएक्ट, हमारा पूरा मूड चेंज होता है जैसा हम ड्रेसअप करते हैं। तो इनर कॉन्फिडेंस एंड योर आउटर कॉन्फिडेंस गो हैंड इन हैंड। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक विमेन घर में नॉर्मल पुराने कपड़े पहनकर रहती है, तो आपने देखा होगा ना, अगर एज अ विमेन हम भी एक कभी रहते हैं तो हमारा मूड एक अलग ही होता है। हम्म. बट द मोमेंट हम एक अपना मूड अच्छा करने के लिए रेड लिपस्टिक भी पुट ऑन करते हैं ना, तो हमारा मूड इंस्टेंटली एलिवेट हो जाता है। तो सेम वे जैसा हम ड्रेसअप डालते हैं वैसे ही हमारा इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, सबसे पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। आपका पोस्चर चेंज हो जाएगा, द वे यू वॉक, अलग ही कॉन्फिडेंस दिखता है। अब देखा है ना कि एक नॉर्मल ड्रेसअप की हुई लेडी और एक पावर ड्रेसिंग किया हुआ विमेन, दोनों का बॉडी लैंग्वेज देखोगे ना बहुत चेंज होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अटायर। तो Yes. अगर हम कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो ये बोलना बिल्कुल मतलब गलत होगा कि सिर्फ अगर हम अच्छे कपड़े पहने तो हमारा इनर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बट नहीं। अगर आप अंदर से फील करोगे कुछ अच्छा है, तभी आप अच्छा ड्रेसअप कर पाओगे। और अगर आप अच्छा ड्रेसअप करोगे, तभी आपका इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। Both of them go hand in hand, and you cannot disconnect one from the other. नो नो नो, Yes, इवन yes. ये तो बहुत एक प्रूवन साइकोलॉजी भी है ना, कि अगर जब ये एक रिसर्च भी हुआ था इन यूएस, राइट, कि कुछ वुमेन्स थी जिनको 1 वीक के लिए रेगुलर जो कपड़े पुराने टी शर्ट पजामा लोअर्स ये डालकर रखा। एंड द सेकेंड वन जो ग्रुप था वो था उनको बहुत अच्छे से ड्रेसअप होना था। एंड आफ्टर अ वीक दोनों ग्रुप्स के जो मेंटल हेल्थ था या दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज थी, पॉस्चर था, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था, राइट? सो दैट इज द रीजन कि आप अगर जैसा ड्रेसअप करोगे, इट चेंज द वे यू स्पीक, यू वॉक एंड यू बिहेव। Yes, yes, can't agree more. I remember as a kid, my mother is a homemaker, so she used to put on her lipstick. She used to change her clothes, and वो जाती कहाँ थी वो सब करके उनका फिक्स टाइम था 10:30 बजे सारे घर के काम निपटा के she would change her dress, she would put on her lipstick, she will put on a bindi and go to the mandir. And I used to laugh at her कि आप मंदिर जाने के लिए इतना तैयार क्यों होके जाते हो? She said, that's one thing I look forward to because it makes me who I am. It makes me feel who I am. Yeah. यस। So now I can relate to this thing जब हम मिड लाइफ में आए हैं कि how much important it is to look good, feel good यस, in ये जरूरी नहीं है कि अगर आप घर पर हो तो यू हैव टू बी वेयर योर हैवी ड्रेसेस और यू हैव टू पुट ऑन अ लॉट ऑफ मेकअप ऑन योर फेस। नो, अगर आप सिंपल एक अटायर, एक अच्छा अटायर भी डाल लेते हो ना और बहुत नॉर्मल सा मेकअप करके भी रहते हो, तो फर्स्टली तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, राइट? एंड सेकेंडली आपके किड्स या जो लोग आपको देख रहे हैं, आपके सराउंडिंग, उनका थॉट प्रोसेस भी चेंज हो जाएगा, yes. राइट? बिकॉज यू फील मोर कॉन्फिडेंट, जब उनको लगेगा ना नाउ शी इज मोर कॉन्फिडेंट, तो उनका थॉट प्रोसेस भी आपके लिए ऑटोमेटिकली चेंज होगा। हाँ, और कॉन्फिडेंस ऐसी चीज नहीं है जो हम पोज कर सकते हैं, वो रेडिएट करता है अपने आप से। सो द वे यू ड्रेस मेक्स यू फील गुड, यू बिकम कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ, एंड दैट इज व्हाट पीपल सी अराउंड यू। एग्जैक्टली, यस। Yeah. तो एक माइंडसेट शिफ्ट जो हर वुमन को के अंदर मैंने देखा है कि हम अलमारी खोलते हैं और हमें लगता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। आई मीन देयर बी 1,000 ड्रेसेस टू वेयर, बट व्हेन इट कम्स टू चूजिंग वन, वी आर ऑलवेज हैविंग दिस कंप्लेंट कि मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं है जो मैं पहन सकती हूँ। सो व्हाट इज दैट वन माइंडसेट शिफ्ट दैट एवरी वुमन नीड्स टू हियर? इन दिस आई वुड लाइक टू से कि सबसे पहले तो ड्रेसिंग जब आप करते हो ना, तो ये सोचकर मत करो कि मुझे कुछ फिक्स करना है, राइट? हमेशा स्टार्ट करो कि हाउ आई कैन सपोर्ट माई सेल्फ rather than fixing myself, right? So like
जब भी हम अपना वार्डरोब ओपन करते हैं ना, तो पहले माइंड में क्या आता है कि मेरा टमी ज़्यादा है तो मुझे उसको फिक्स करना है, या फिर मैं पतली हूँ तो मुझे थोड़ा मोटा दिखना है, मैं ऐसे कपड़े पहनूँ। तो सबसे पहले हमारा माइंडसेट ये चेंज होना चाहिए कि रैदर देन फिक्सिंग योरसेल्फ, रैदर देन फिक्सिंग योर बॉडी, अपनी बॉडी को सपोर्ट करो। एंड सेकेंडली, वी एज अ विमेन, हमारे वार्डरोब में जो क्लोथ्स होते हैं ना, वो मोस्टली इमोशनली परचेज किए होते हैं या फिर रैंडम बाइंग होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ गई, ठीक है, मेरी फ्रेंड ने बोला यार ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है पीस, या ये बहुत अच्छा लगेगा तेरे ऊपर, ले ले। मैं ये सोचूंगी ही नहीं कि हाँ ये मुझ पर अच्छा लगेगा, हाँ यार मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया है तो कुछ अच्छा ही किया होगा, राइट। और मैं उसको परचेज कर लेते हैं हम लोग। एंड द नेक्स्ट वन इज, अगर सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे हस्बैंड ने बोला ये कलर तुम्हारे पर बहुत प्यारा लगेगा, तो विदाउट एनी अदर थॉट, हाँ यस मेरे हस्बैंड ने बोला तो मैंने ले लिया। तो ऐसे पीसेस हमारे वार्डरोब में एन नंबर ऑफ पीसेस वी विल हैव, राइट। और जब हम ये पहनने के लिए कुछ देखते हैं, तब क्या लगता है, नहीं ये कलर तो मुझ पर सूट ही नहीं कर रहा, या ये अटायर तो मुझ पर अच्छा ही नहीं लग रहा। तो रेदर देन बाइंग इमोशनली, strategically you should buy, Very because important. women's wardrobe more need more strategy and more clarity rather than impulse buying. तो फीमेल्स को जो ये हमेशा लगता है, स्पेशली ड्यूरिंग मिड लाइफ, कि नथिंग सूट्स मी एनी मोर, Hmm. what is that one thing that they are really getting wrong? See, as I told you before also, like they choose clothes based on their younger age. जो 25 में था वो 45 में सूट नहीं करेगा। आपको फर्स्ट थिंग कि आपको अपना लाइफस्टाइल समझना पड़ेगा, आपको अपना बॉडी शेप समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी शेप इज नथिंग, वी आर नॉट कुकी कटर्स कि हमारा बॉडी शेप सिर्फ पेयर है तो पेयर बोल दिया यस आई एम पेयर बॉडी शेप, या आई एम ट्राइंगल बॉडी शेप। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर नॉट फ्रूट्स, right? So we can't be apple or pear anymore, because every woman or every person has their own body, और उस बॉडी के कुछ वेरिएशंस भी होंगे, कुछ फ्लॉज भी होंगे। तो हमें अपनी बॉडी के वेरिएशंस को पहले समझना है, राइट, रादर देन कि मेरा पेयर बॉडी शेप है तो मैं ये चीजें पहन लेती हूँ, नहीं। क्योंकि बॉडी शेप सी, ट्रायंगल बॉडी शेप तो कितने लोगों का होगा। अगर एक सिंगल ट्रायंगल शेप कपड़े दो लोग पहने तो दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल चेंज होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने मेरी फ्रेंड को देखा कि उसने एक बहुत प्यारा वन पीस डाला हुआ है और उसका मेरा बॉडी शेप सेम है, राइट, बट मैंने भी सेम अगर डाल लिया तो क्या मैं सेम कॉन्फिडेंट फील करूंगी? नो, जस्ट बिकॉज कि वो मेरा पर्सनल स्टाइल नहीं है, फर्स्ट थिंग, बिकॉज एवरी वन हैज सम यूनिक स्टाइल, और उस स्टाइल को हमें समझना पड़ेगा कि मेरा स्टाइल क्या है। rather than copying others style, first understand your style, your lifestyle, your what's your personal style and lifestyle. It depends, like कि आप क्या पहनते हो वो आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, rather than choosing random clothes. ग्रेट, ग्रेट, ब्यूटिफुली एक्सप्लेन। तो हाउ कैन दे, यहाँ पे अब आप थोड़ा सा बताएं कि वो कैसे ड्रेस कर सकती हैं फॉर देयर बॉडी इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू हाइड इट। See, as I said, like ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने जल्दी आंसर कर दिया। Like first you have to understand your body, right? कि आपको स्टाइलिंग इज नॉट अबाउट हाइडिंग योर बॉडी, स्टाइलिंग इज अबाउट हार्मोनाइजिंग योर लुक। जब आपके लुक में बैलेंस होगा, व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरा प्रपोर्शन क्या है, बिकॉज आवर बॉडी हैव सम प्रपोर्शंस, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा प्रपोर्शन क्या है, राइट। मुझे क्या चीज़ है, लाइक रैदर देन कि मुझे अपनी टमी हाइड करनी है या मुझे एक स्पेसिफिक एरिया हाइड करना है, रैदर देन ये सोचने की बजाय आप ये सोचो मैं उसमें कैसे हार्मनी लेकर आऊँ, या मेरे इसको प्रपोर्शन। अगर आप थोड़ा सा स्लाइटली मोर इलेबोरेट इफ यू कैन डू, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए, बिकॉज हर किसी को ऐसे समझ में नहीं आएगा कि मैं ऊपर से पतली दिखती हूँ या मैं नीचे से पतली दिखती हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। See, for an example, let me give you an example of triangle body shape, right? Triangle body shape में क्या होता है, इस टाइप से हमारा triangle होगा, that means हमारा जो ये upper shoulder area होगा that is narrower than our bottom part, हाँ, ठीक है। अब हमारा मेन गोल क्या है, हमें अपनी बॉडी को आइडियल बॉडी शेप दिखाना है।
आइडियल बॉडी शेप में क्या होता है, आपकी वेस्ट डिफाइन होती है, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो इस टाइप से है, जहाँ आपकी वेस्ट थोड़ी डिफाइन होगी, जहाँ आपकी वेस्ट में इंडेंटेशन होगा, थोड़ा गैप होगा, राइट। हमारा एम होता है कि ट्रायंगल बॉडी शेप है तो उसको आइडियल बॉडी शेप में हम कैसे लेके आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज एन इमेज कंसल्टेंट और ए स्टाइलिस्ट, हम लोग क्लोथ्स को एज अ रिसोर्स यूज करते हैं, राइट। रिसोर्स यूज करते हैं का मतलब, अगर मैं ट्रायंगल बॉडी शेप हूँ ना तो मैं अपनी बॉडी को आइडियल बॉडी शेप भी बना सकती हूँ। थोड़ा सा अगर मेरे नैरो शोल्डर्स हैं तो मैंने पफ स्लीव्स यूज कर लिया अपने शोल्डर्स को ब्रॉडर दिखाने के लिए, और अपने बॉटम पर मैंने ए लाइन स्कर्ट डाल दिया, प्लेटेड ए लाइन स्कर्ट। क्या हुआ, इधर से मेरा स्ट्रक्चर आ गया, अब वेस्ट को मैंने सिंच किया, एक बहुत पतली सी एक बेल्ट डाला, उससे मेरा वेस्ट डिफाइन हो गया। ए लाइन स्कर्ट डाला तो मेरा बॉटम पार्ट भी डिफाइन। अब जब आप विजुअलाइज करोगे ना तो आई शो यू, सी दिस इमेज, अगर इसको विजुअलाइज करोगे, अगर ये रेक्टेंगल बॉडी शेप भी है या ट्रायंगल बॉडी शेप है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज शोल्डर्स एंड दिस स्कर्ट क्या दिख रहा है कि इनका एक नैरो वेस्ट भी है। हाँ, तो वो एक सिमेट्री आ जाएगी आपको, जो एक फीमेल बॉडी को शेप चाहिए होता है आर ग्लास वाला, वो आ जाता है। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी प्रोपोर्शंस, कि हमें कहाँ पर वेट डालना है इन गारमेंट और कहाँ से हमें वेट हटाना है। तो इसी में जैसे जो मिड लाइफ वुमेन में बेली एरिया का जो प्रॉब्लम है, मिडरिप एरिया मेरा बहुत ज्यादा मेजर पेन पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द वुमेन हैव दिस कंप्लेंट। तो किस तरह के सिलुएट्स या स्टाइल्स हैं जो वुमेन को हेल्प कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम टू फील कंफर्टेबल येट स्टाइलिश? इसमें हमें अपनी टमी एरिया को कम्प्लीटली हाइड नहीं करना, बिकॉज वी कांट, राइट। तो हमारा मेन मोटिव है थोड़ा ईज देना है हमें उस एरिया पर, मूवमेंट देना है जो हमारी बॉडी इजीली मूव कर पाए, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर देना है जिससे थोड़ा डेफिनेशन मिले, ठीक है। तो अब उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप ए लाइन सिलुएट्स यूज कर सकते हो, फॉर एन एग्जांपल ए लाइन स्कर्ट्स हो गई, या फिर अगर आप इंडियन वेयर में हो तो ए लाइन कुर्तीज डाल सकते हो। रैप ड्रेसेस हो गया, जहाँ पर हमारी वेस्ट पार्ट होता है वो सिंच होता है। इफ आई हैव, आई विल शो यू दिस, इन दिस कैन यू सी क्लियरली द वेस्ट पार्ट, थोड़ा डेफिनेशन के लिए गैदरिंग हो रही है गारमेंट में, राइट। सो इस टाइप की आप सिलुएट्स यूज कर सकते हो। एंड सेकेंडली आप पेपलम टॉप यूज कर सकते हो, ठीक है। वी नेकलाइन, नेकलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप वी नेकलाइन डालोगे तो नीचे जितना ध्यान भी नहीं एग्जैक्टली फोकस आपका आपके फेस पर ही रहेगा, ठीक है। इस टाइप की छोटी छोटी चीजें, आप कैसे अपनी शर्ट को टक करते हो, या फिर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आपके ड्रेस का हेम लाइन क्या है, मतलब आपकी जो ड्रेस है ना, हेम लाइन हम बोलते हैं वेयर इट एंड्स, एंडिंग पार्ट ऑफ योर ड्रेस, राइट। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिसको हम अगर माइंड में रखें तो हम अपने आप को ज्यादा अच्छे से कैरी कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, वंडरफुल। तो ऐसे क्या स्मार्ट हैक्स ऐसे में आप बताना चाहेंगी फैब्रिक को लेके, या ड्रेपिंग स्टाइल्स को लेके, या टेलरिंग को लेके, जिससे लुक हम इंस्टेंटली एलिवेट कर सकते हैं? स्टाइल में अगर मैं बात करूँ तो पहली चीज, अगर हम टेलर्ड फिट की बात करते हैं, टेलर्ड फिट इज लाइक कि जो आपकी बॉडी पर फिट हो। पहले तो आप फ्लोई फैब्रिक डालो। फ्लोई फैब्रिक से क्या होगा कि जो फैब्रिक आपकी बॉडी पर ना बहुत ज़्यादा क्लिंच नहीं होगा, राइट। वो अच्छे से ड्रेप आप अच्छे से फॉल करेगा, तो जो आपके वेरिएशंस होंगे ना वो इजीली हाइड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें अपनी वेस्ट का प्लेसमेंट कहाँ रखना है, क्योंकि वेस्ट प्लेसमेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपकी वेस्ट डिफाइन होगी तो वो इल्यूजन क्रिएट करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, बट इट ऑल्सो मैटर कि अगर हमने वेस्ट डिफाइन भी किया है तो वो कहाँ, अगर मैंने बेल्ट के थ्रू एक अपना वेस्ट डिफाइन किया और मैंने बेल्ट को ही अपने टमी एरिया पर लगा लिया, फोकस कहाँ गया, फोकस तो हमारा टमी एरिया पर ही आ गया, है ना। तो टमी एरिया से हमें शिफ्ट करना है, दैट मीन्स टमी जो आपका वेरिएशन है उसे थोड़ा सा आप स्लाइटली अप कर लो, तो उससे क्या होगा, आपकी हाइट भी एलोंगेट हो जाएगी, बिकॉज आपका लोअर पार्ट एलोंगेट हो जाएगा, राइट। सो इट इज मोर अबाउट हाउ you like choose silhouettes for your outfit and garment, so it is more about this. ब्यूटीफुल, वंडरफुल। तो हम काफी फीमेल्स को ये आर्म एरिया, हैवी आर्म्स का प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए व्हाट डू यू हैव?
सी अगर हैवी आर्म्स का प्रॉब्लम है, पहली चीज हैवी आर्म्स है या आपकी थिन आर्म्स है, डजेंट मैटर, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ब्यूटीफुल यूनिक बॉडी शेप्स, राइट? बस हमें क्या करना है कि अगर सपोज मेरा वेरिएशन है, मुझे अपनी आर्म्स को छुपाना है, राइट? तो आप क्या करो, अगर इधर से आपकी आर्म थिक है ना, तो थोड़ा सा आप लंबा सिलुएट डाल लो, लेंथ उसकी थोड़ी लंबी ले लो। मतलब जो भी आपको हाइड करना है, बस वहां पर फोकस नहीं आना चाहिए। अगर मैंने शॉर्ट आर्म्स पहनी, फॉर एन एग्जांपल इसी को लेते हैं, अगर आर्म्स का ये पार्ट मेरा हैवी है, अब ये कट भी आर्म इधर ही हो रही है ना, स्लीव्स का एंड इधर हो रहा है, तो क्या होगा, फोकस एरिया ही मेरा ये हो गया। अब सेम सेम अगर मैंने फैब्रिक ही ऐसा लिया है जो बहुत स्ट्रक्चर्ड फैब्रिक है, वो क्या करेगा, मेरी आर्म्स को और ज्यादा एनहांस करेगा। तो मैं अगर कोई फैब्रिक लेकर इस लेंथ को इधर तक भी ले आऊँ, 3/4 तक कर दें, क्या होगा, हमारा इधर से कवर भी हो गया और प्रॉपर स्ट्रक्चर भी आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लोई फैब्रिक। यस। तो इट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि आपकी स्लीव का एंड किधर हो रहा है और आपने फैब्रिक क्या चूज किया है। तो हमेशा फैब्रिक और हेमलाइन दोनों आपको ध्यान रखना है कि मेरा एंड किधर होना चाहिए, मेरी आर्म्स में जो लेंथ है उसका, और मेरा फैब्रिक कैसा होना चाहिए, rather than choosing very stuff fabric or the stiff fabric, आप फ्लोई फैब्रिक यूज करें। और हम एफर्टलेस स्टाइलिंग किसको बोलते हैं, एंड हाउ कैन वुमेन अचीव दिस डेली इन देयर डेली एवरीडे लाइफ विदाउट ओवरथिंकिंग? सी एफर्टलेस स्टाइलिंग, जो मैं मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट एफर्टलेस स्टाइलिंग वो बोलते हैं लाइक कि कुछ भी पहन लो जिसमें आपको एफर्ट ना डालना पड़े। दे पीपल फील लाइक दैट, राइट? बट एफर्टलेस स्टाइलिंग इज नॉट कि वी वेकअप लाइक दिस, बिकॉज एफर्टलेस स्टाइलिंग का मतलब होता है जब आपको अपना लाइफस्टाइल क्लियरली समझ में आए, जब आपको ये पता है कि मेरा स्टाइल क्या है, तब आप एफर्टलेस स्टाइलिंग करते हो। हमने देखा है ना, कुछ विमेन या कुछ मेंस को भी देखा है हमने कि उनको देखकर लगता है कि जस्ट वाओ, मतलब कितना अच्छा ड्रेसअप हुआ है, कि जैसे ये कपड़े सिर्फ उन्हीं के लिए बने हैं। व्हाई? बिकॉज दे नो व्हाट कलर सूट ऑन देमसेल्फ, कौन सा कलर उन पर अच्छा लगेगा, कौन से सिलुएट्स, कौन सा फिट उन पर अच्छा लगेगा, या उनका लाइफस्टाइल क्या है। अगर उनका लाइफस्टाइल है मोर ऑन सोशल, तो वो उसके अकॉर्डिंग कपड़े डालेंगे। उनको पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, दे नो देयर लाइफस्टाइल वेरी वेल, तब वो उसके अकॉर्डिंग एफर्टलेस स्टाइलिंग उसको बोलते हैं। दे नो देयर बॉडी शेप्स, दे नो देयर वेरिएशंस। तो इन सब चीजों को जब आपको पता लगेगा ना कि यस आई नो माई बॉडी बेटर, तब आप एफर्टलेस स्टाइलिंग ज्यादा अच्छे तरीके से करते हो। सो फॉर एफर्टलेस स्टाइलिंग यू मस्ट नो योर बेस्ट कलर्स, योर बॉडी शेप्स, योर fits, your lifestyle and your personal style. Personal style is very important to know for everyone. वंडरफुल वंडरफुल। तो कुछ ऐसे स्टाइलिंग ट्रिक्स जो अभी आप किस बताना चाहेंगे, सो दैट फीमेल्स कैन फील इंस्टेंटली पुट टुगेदर इवन ऑन लो एनर्जी डेज, क्योंकि हम लोग के काफी लो एनर्जी डेज आते हैं इसीलिए कुछ दिन होता है जब तैयार होने का मन नहीं करता, तो ऐसे में हम क्या ऐसी क्विक स्टाइलिंग कर सकते हैं जो इंस्टेंटली हमें फील कराती है पुट टुगेदर? सी पहला तो अपने ओवरऑल लुक में एक फोकल पॉइंट जरूर रखो। इट कुड बी एन एक्सेसरी और द ब्यूटीफुल नेक पीस, इट कुड बी योर लिपस्टिक। एक फोकल पॉइंट होना चाहिए जहां पर आपको लगता है कि लोग मुझे सुने या मुझे देखे, लोगों का फोकस है, ठीक है? एक आप स्ट्रक्चर कोई भी एलिमेंट यूज कर लो। स्ट्रक्चर एलिमेंट से क्या होगा कि आपका लुक इंस्टेंटली, अगर आपने सिंपल अटायर भी डाला है ना, तो आपका लुक एक स्ट्रक्चर एलिमेंट के थ्रू एलिवेट हो जाएगा। स्ट्रक्चर एलिमेंट कुड बी योर एक्सेसरीज, दैट कुड बी योर ब्लेजर, दैट कुड बी योर स्पेक्स फॉर एन एग्जाम्पल, राइट? तो एक स्ट्रक्चर एलिमेंट आप यूज कर लो। जो आपकी कलर हार्मनी होनी चाहिए, लाइक कलर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप मोनोक्रोम कलर यूज करो। मोनोक्रोम का मतलब होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई लव टू वेयर ब्लू ड्रेस, राइट? सो ब्लू का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं यही ब्लू में पूरा आउटफिट डाल लूँ, राइट? ब्लू के भी कितने सारे कलर्स होते हैं। तो अगर मैंने टॉप इस कलर का लिया है, तो माई बॉटम कुड बी दिस ब्लू और माई इयरिंग कुड बी दिस ब्लू,
राइट? सो ये होता है मोनोक्रोमेटिक आउटफिट। तो आप मोनोक्रोम ड्रेसिंग करोगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंट फील आएगा। सो इस टाइप छोटी छोटी चीजें अगर हम चेंज करते हैं ना, तो हमारी ड्रेसिंग और हमारा कॉन्फिडेंस वैसे ही चेंज हो जाता है। यस यस यस, वंडरफुल। ये मुझे काफी अच्छा लगा था, बिकॉज यूजुअली पीपल अंडरस्टैंड कि मोनोक्रोम का मतलब एक ही कलर पहनना। सो हाँ सेम फैमिली के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में जब हम ड्रेस अप होते हैं, सो दैट इज ऑल्सो मोनोक्रोम, और वो इंस्टेंटली आपको एक डिफरेंट हाईलाइट देता है। एग्जैक्टली। और अगर सिंपल एक आउटफिट है ना, उसमें भी अगर हम ऑपोजिट कलर भी डाल दें, फॉर एग्जाम्पल इफ माई आउटफिट इज रेड कलर, हम्म राइट, लेट मी शो यू। इफ आई एम वेयरिंग अ रेड कलर आउटफिट, मेरा पूरा कंप्लीट रेड कलर का आउटफिट है, बट मुझे हम्म चाहिए थोड़ा इंटरेस्ट, बहुत बोरिंग हो गया ये मैंने डाल लिया, पूरा आउटफिट ही सेम कलर का है, थोड़ा बोरिंग हो गया, राइट? तो अगर मैंने एक बैग, छोटा स्लिंग बैग अगर मैंने ग्रीन कलर का ले लिया, दैट इज ऑपोजिट इन द कलर वे, चार्ट या राइट? सो इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम हम्म हमने क्रिएट की। तो अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट चाहते हो आउटफिट में, तो आप जस्ट ऑपोजिट कलर ले लो, राइट? तो उससे आपका आउटफिट इंटरेस्टिंग बन जाएगा। यस यस। yes. So, have you actually seen someone, transform their confidence through just by the means of styling? कोई ऐसी story जो आप share करना चाहेंगे हमारे audience के साथ? यस। फर्स्ट थिंग इज, विमेन थिंक कि उनको फैशन टिप्स की जरूरत होती है, राइट? बट नो, समटाइम व्हाट हैपन कि उनका जो कंफर्ट जोन होता है ना, उससे निकालने की उनको बहुत जरूरत होती है। उनको चाहिए कि बीइंग अ मदर, बीइंग अ होम मेकर, क्या होता है कि हम अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं, राइट? और लगता है कि नहीं, बस जो चल रहा है मैंने वही डाल लिया और चलो घर के ही तो काम करते हैं। बट द मोमेंट यू चेंज योर ड्रेसअप, फर्स्ट थिंग आपको इंटरनली फील करना होगा कि नहीं, अगर मैं घर में भी हूँ तो आई हैव टू बी अब लाइक लुक बिट रेडी। ठीक है, ऐसा नहीं कि घर में हूँ तो मैंने कुछ भी डाल दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं क्लाइंट का एग्जाम्पल दूँ, अ होम मेकर केम टू मी एंड सेड लाइक शालिनी, कोई भी मुझे घर में ना बहुत सीरियस नहीं लेता, कोई भी डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है या कुछ भी, सब आपस में बात करते हैं, बट मुझे बहुत नेग्लेक्टेड फील होता है, राइट? सो आई सेड कि ओके, आप पहले ये बताओ कि आप घर में पहनते क्या हो। शी शेयर्ड सम इमेजेस कि हाँ मैं ऐसे ऐसे घर में रहती हूँ। तो द मोमेंट आई सीन हर इमेजेस, आई रियलाइज कि जब आप घर में ऐसे रहते हो, लाइक आपकी मेड, अगर आप अपने आप को अपनी मेड से कंपेयर करते हो कि हाँ अरे घर में ही तो हूँ, कुछ भी पहन लिया, नो। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देते हो ना, तभी लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। एंड व्हेन आई सेड दीज वर्ड्स टू हर, तो शी सेड लाइक यस शालिनी, मैं तो अपने आप को रिस्पेक्ट ही नहीं देती, मुझे लगता है सुबह उठना है, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है, टिफिन रेडी करना है, हस्बैंड के लिए काम करना है, फिर सारा दिन घर में ही तो रहना है, तो मे बी इसलिए मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता, राइट? एंड व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन हर आउटफिट्स, एंड आफ्टर अ मंथ शी रियलाइज कि नहीं, अब सब घर में मुझे नोटिस भी करते हैं, मेरी वैल्यू भी बढ़ी है, जस्ट बिकॉज कि मैंने अपने आप को रिस्पेक्ट दिया। Yes. बिकॉज इट ऑल्सो लाइक, ये कपड़ों से भी बहुत शो होता है कि आप कैसा ड्रेसअप करते हो ना, इट शोज हाउ मच रिस्पेक्ट यू गिव योर टू योरसेल्फ, This is राइट? very, very powerful, and I want every woman here to listen to this. Those who don't take themselves seriously, especially the homemakers, जिनको ये लगता है कि हमने कहीं बाहर तो जाना नहीं है, सारा दिन घर के काम ही करने पड़े हैं, stop treating yourself as a doormat first. आप अपने आप को जैसा ट्रीट करोगे वैसे ही आप जो है बाकी लोग जो है आपको ट्रीट करेंगे। अगर आप अपने हस्बैंड से, बच्चों से भी रिस्पेक्ट करवाना चाहते हो, तो आपको पहले खुद को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। एंड उसके लिए दिस इज वेरी समथिंग वेरी सिंपल एंड डुएबल कि पहले तो आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो। स्टार्ट टेकिंग योर इंटरेस्ट इन योर बॉडी, स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर ड्रेसिंग, क्योंकि ड्रेसिंग से आपका कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली लिफ्ट होता है। एज शालिनी सेड, ये आप खुद अभी 2 मिनट में भी ट्राई करके देख सकते हो। जस्ट वेयर समथिंग दैट यू फील गुड इन, और इंस्टेंटली आपके मूड में यू विल फील द शिफ्ट। तो जब इतनी छोटी सी चीज से आप इंस्टेंट शिफ्ट पा सकते हो, तो यू कैन अचीव इट एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ। यस। तो एंड आई
Yes, हाँ sorry, जी. Sulabha. Yeah, I wanted to add one point here. Like styling, what people think nowadays, what is styling is expensive clothes or the branded labels should have, or they have to follow trends. But styling is not about following trends blindly. अगर कुछ ट्रेंड में है, फॉर एन एग्जांपल अभी ट्रेंड में ना पोल्का डॉट्स बहुत ज्यादा है, बट अगर वो आपके लाइफस्टाइल के साथ अलाइन नहीं करता तो आप उसको कैसे पहनोगे? अगर वो ट्रेंड में है, इट डजंट मीन कि वो आपके लिए है, बट यस, अगर वो ट्रेंड में है और आपके लाइफस्टाइल के साथ भी अलाइन करता है तो व्हाई नॉट? एंड टू लुक स्टाइलिश इट डजंट मीन कि आपको महंगे एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनने हैं। आप सिंपल जो क्लोथ्स आपके साथ अलाइन करते हैं ना, जो आपके लाइफस्टाइल के साथ अलाइन करते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, यू कैन वेयर। इट डजंट मीन कि आपको स्टाइलिश दिखने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। यस, अगेन समथिंग वेरी वेरी पावरफुल, क्योंकि स्टाइलिंग को हम ज्यादातर एसोसिएट करते हैं एक्सपेंसेस से. यू कैन स्टाइल इन विद इन योर बजट एज वेल, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे किस तरह का पहना है. वन थिंग व्हेन वी वर टॉकिंग, शालिनी, यू मेंशन्ड अबाउट लेयरिंग. यहाँ पे आई वुड वांट यू टू थोड़ा सा आप लेयरिंग के बारे में भी लोगों को बताएं, बिकॉज दैट्स वेरी वेरी पावरफुल. विद इन योर बजट you can create a lot of variations of your style. So somehow it did come up in today's conversation, so I would want you to just share that also with our audience today. Yeah, let me show you with an example. See, इस ड्रेस को मैं कितने टाइप से स्टाइल कर सकती हूँ. लेयरिंग फर्स्ट मीन्स, अगर हमने एक नॉर्मल शर्ट भी किसी पर डाल दिया, किसी ड्रेस पर एक श्रग डाल दिया, तो उसको हम लेयरिंग काउंट करेंगे. लेयरिंग इज नॉट ओनली अबाउट कि मैंने कोई शर्ट पहन लिया या श्रग पहन लिया. लेयरिंग मीन्स योर थर्ड एलिमेंट इन योर लुक. इट कुड बी योर स्कार्फ, कि आप एक ब्यूटीफुल सा स्कार्फ डाल लिया सिंपल ड्रेस पर, इट ऑल्सो वर्क लाइक योर लेयरिंग. अगर आपने एक ब्यूटीफुल कोई स्ट्रक्चर नेक पीस डाल लिया, वो भी एक लेयरिंग के टाइप से काम करेगा. अगर आपने किसी कंप्लीट सिंपल अटायर पर एक हेड डाल लिया या फिर एक कैप डाल लिया, वो भी लेयरिंग के टाइप से काम करेगा. बट इफ यस, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें आपका टमी एरिया को अगर आपने हाइड करना है थ्रू लेयरिंग, तो आप क्या कर सकते हो? एक सिंपल ड्रेस पर अगर आप श्रग पुट ऑन कर लो, राइट, तो उससे क्या होगा, एक वर्टिकल लाइन का इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा, जिसके थ्रू आपका टमी एरिया भी हाइड हो जाएगा और आप यू विल लुक मोर स्टाइलिश, राइट. सो लेयरिंग वर्क इन डिफरेंट मैनर्स. लेयरिंग इज नॉट ओनली अबाउट कि बस एक शर्ट या श्रग डाल लिया और हमारा लेयरिंग हो गया. लेयरिंग इज पर्टिकुलरली योर थर्ड एलिमेंट इन योर लुक. Yes, very powerfully suggested. सिर्फ शर्ट और ट्राउजर पहन के आप जो है दैट इज नॉट लेयरिंग. लेयरिंग को आप कई तरह से उसी सेम शर्ट और पैंट के ऊपर जो आप थर्ड एलिमेंट ऐड करते हैं, बी इट अ स्कार्फ, बी इट अ ज्वेलरी, बी इट सम हेड ड्रेस, बी इट सम ब्रूश, हर चीज जो है उसकी स्टाइलिंग को, उसके एलिमेंट को एनहांस कर सकती है. सो यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ वेरिएशंस विद दैट जस्ट दोज टू पीसेस एज वेल. Yeah, let me show you an example. See, this is a very beautiful simple attire. Yes. ठीक है. अगर मैं अपने ऑफिस जाऊंगी तो मैं विदाउट स्कार्फ भी जा सकती हूँ. बट इफ आई वांट कि मुझे चेंज नहीं करना और मेरे फ्रेंड्स के साथ में जा रही हूँ, थोड़ा सा मुझे चेंज करना है अपने लुक में, तो द मोमेंट आई रैप दिस स्कार्फ, थोड़ा स्टाइलिश लगेगा और थर्ड लेयर काउंट हो जाएगा, राइट. तो थर्ड लेयर इज बेसिकली टू चेंज आवर लुक. यस, यस, वंडरफुल. एक ऐसा कोई गोल्डन रूल और बता दो जो मिड लाइफ वुमेन को फील कराए कॉन्फिडेंस इन व्हाट दे वेयर, एंड व्हाट would you suggest for that? See, first of all, I would like to request all of women, those are watching me, please don't dress to disappear. ये मत सोचो कि मुझे क्राउड के साथ चलना है. ये सोचो हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, जो मैं हूँ वो कैसे बनूँ. इट इज़ नॉट कि अगर मेरी मैरिज हो गई है या मेरे बच्चे हो गए हैं, आई एम अ मदर, तो मुझे वैसे ही कपड़े डालने चाहिए जो एक मदर डालती है, राइट. बिकॉज इट इज़ नॉट यू. आप ये सोचो कि मैं क्या डालकर अच्छी लगती हूँ, राइट. क्योंकि अगर मेरे इन लॉज ने बोल दिया, आफ्टर मैरिज में बहुत सारे चेंजेस हमारे लाइफस्टाइल में भी आते हैं, हमारे ड्रेसिंग सेंस में भी आते हैं.
तो अगर मुझे साड़ी डालनी है, साड़ी में भी तो मैं अपना स्टाइल डाल सकती हूँ ना, व्हाई नॉट? साड़ी को भी मैं अपने स्टाइल में कैरी कर सकती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसअपियर मत हो, अपने आप को ये मत फील कराओ कि अरे मेरी शादी हो गई या मेरे बच्चे हो गए या फिर मेरा एक लाइक मेरी एज ये हो गई है तो आई कांट बी लाइक दिस। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट ट्राई टू डिसअपियर योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। आपकी जो चॉइसेस हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, राइट? एंड कॉन्फिडेंस सिर्फ यंग दिखने में नहीं कि अगर मैं छोट अपनी एज से कम दिखूंगी तभी मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। इट इज नॉट ट्रू। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप अपनी एज के साथ, अपनी लाइफस्टाइल के साथ अलाइन करोगे, तभी आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे, राइट? तभी आपको आप कंफर्टेबल फील करोगे, और जब आप कंफर्टेबल फील करोगे तो कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो दिस इज अ गोल्डन रूल कि प्लीज डोंट ट्राई टू डोंट ट्राई टू मेक योरसेल्फ यंगर कि मुझे यंग दिखना है तभी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। नो, यू एज ब्यूटीफुली। तो आप उसको कैसे कैरी करोगे वो चीज आप देखो। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि आजकल जो हम देखते हैं, वी आर काइंड ऑफ फॉलोइंग द फैशन परेड दैट इज गोइंग ऑन आउटसाइड, चाहे अंदर से हम उसमें कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। वी ड्रेस टू इम्प्रेस पीपल। आप यस, इम्प्रेस भी दूसरे को तब कर सकते हो जब आप उसमें कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो। सो वॉट एवर यू वेयर, you can carry it beautiful. I've seen so many females carrying themselves so confidently and so beautifully in sarees and suits. भले ही दुनिया कुछ भी पहनी हुई है, बट दे आर दे आर ग्रेसफुल इन देमसेल्व्स, एंड यू विल डेफिनेटली, वो सारे क्राउड में से वो अलग से दिखते हैं वो लोग, क्योंकि they are comfortable in what they are wearing and they are confident in how they are looking. तो आपकी जो ड्रेसिंग है, doesn't matter what it is, it could be a fully covered dress, it could be a partially covered dress, it could be a suit, it could be a sari, it could be a dress, anything. but अगर आपके अंदर से उसके साथ अलाइनमेंट है, तभी आप उसको अच्छे से कैरी कर पाओगे, कॉन्फिडेंटली उसको कैरी कर पाओगे. So very, yes. very important message. Thank you so much, Shalini, for such a refreshing and an empowering conversation today. I truly loved how you beautifully explained the style is not about fitting into a certain size and hiding imperfections. ये बहुत ज़रूरी पार्ट है जो फीमेल्स को समझना है. अब उनका माइंडसेट अराउंड जो ड्रेसिंग है वो चेंज होना जरूरी है, because that is how you start feeling confident, graceful and comfortable in your own skin. I'm sure a lot of women listening resonated with the struggles that we discussed, whether it is related to body changes in midlife, feeling disconnected from ourselves and from our wardrobe, or simply losing confidence in how we are presenting ourselves to the world. And your practical and realistic and compassionate advice has definitely given them a very new perspective. So to everyone who's watching and listening today's episode, if it has helped you in any way, then please do share it with another woman who needs this reminder that she deserves to feel beautiful and confident at every stage of life. And if you could connect with Shalini Gupta for styling, if you want to connect with Shalini Gupta for styling, image consulting, grooming, and confidence transformation, you can follow her work and explore her work. I will be putting the comments in her links in the comment section. You can just check out her page on Instagram. You can connect with her on her WhatsApp. I will be putting both the links in the comment section once this is over. And if you're a woman who's confused about the midlife changes, what are the transitions, ये क्यों हो रहा है, मुझे स्लीप में क्यों दिक्कत आ रही है, मुझे इमोशनली क्यों चैलेंजेस आ रहे हैं, मेरे पीरियड में चेंजेस आ रहे हैं, मुझे ब्रेन फॉग हो रहा है, या मैं बहुत चिड़चिड़ी हो रही हूँ. So these are all the signs of hormonal shifts. If you are feeling that disconnect and you are wondering why it is happening to you, then I'm hosting a webinar tomorrow. Again, I will be putting that link after this gets over in the comment section. You can check it out, check out that link and register for tomorrow's webinar, and where I will be guiding you through the hormonal shifts that are happening in midlife. This is all free of cost. So until the next time, please take care of yourself, carry yourself with confidence, and remember, elegance begins the moment you stop apologizing for who you are. Remember that you are not here to disappear.
just reconnect with your inner self. So thank you so much, Shalini. Thank you for this beautiful conversation. I'm sure a lot of people really loved having you today. Thank you, Sulba. Thank you so much for giving me this such beautiful opportunity. Thank you. Thank All you. right, then see you. And I will be sharing the links in the comment section. You can just connect with Shalini whenever you want to check out her page and get connected to her WhatsApp and register for tomorrow's webinar, where you will be getting a lot of clarity on what is actually happening in your body. All right, then see you. Bye bye.